घोषित करें, ये परमेश्वर का वचन है, यह परमेश्वर का वचन है। इसमें मेरा विश्वास इसमें मेरा है। विश्वास। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। आइए पढ़ते हैं सबसे पहला भाग मत्ती 21 पहली आयत से 17वीं आयत तक। मत्ती 21 पहली आयत से 17वीं आयत तक। માથી 21 1 થી 17 કલમ। અને જ્યારે તેઓ યરુશલેમની નજીક આવ્યા ને જૈતુનના પહાડ પાસે બેથફગે સુધી પહોંચ્યા, ત્યારે ઈશુએ બે શિષ્યને મોકલીને કહ્યું કે તમે સામા ગામમાં જાઓ ને તેમાં પેસ્ટાર બાંધેલી એક ગધેડી તથા તેની જોડે બચ્ચું દેખાશે, તેઓને છોડીને મારી પાસે લાવો। અને જો કોઈ તમને કંઈ કહે તો તમારે કહેવું કે પ્રભુને તેઓનો ખપ છે, એટલે તે તેઓને લાગલો મોકલી દેશે। હવે આ એ માટે થયું કે પ્રબોધકે જે કહ્યું હતું તે પૂરું થાય કે સિયોનની દીકરીને એમ કહો કે જો તારો રાજા તારી પાસે આવે છે તે નમ્ર છે તથા ગધેડા પર હા ખોલા પર એટલે ગધેડીના વછેરા પર સવાર થઈને આવે છે। ત્યારે શિષ્યોએ જઈને ઈશુએ તેઓને ફરમાવ્યું હતું તેમ કર્યું, અને તેઓ ગધેડીને બચ્ચા સુધા લાવ્યા ને પોતાના લુગડા તેઓ પર નાખ્યા, અને તે તેઓ પર સવાર થયો। અને લોકોમાંના ઘણા ખરાએ પોતાના લુગડા રસ્તામાં પાથર્યા, ને બીજાઓએ ઝાડો પરથી ડાળીઓ કાપીને રસ્તામાં પાથરી। અને આગળ ચાલનાર તથા પાછળ આવનાર લોકે પુકાર્યું કે દાઉદના દીકરાને હોસાના, પ્રભુને નામે જે આવે છે તે આશીર્વાદિત છે, પરમ ઊંચામાં હોસાના। અને જ્યારે તે યરુશલેમમાં આવ્યો ત્યારે તે આખા નગરે ખબડી ઉઠીને કહ્યું કે એ કોણ છે? ત્યારે લોકોએ કહ્યું કે ઈશુ પ્રબોધક, જે ગાલિલના નાસરેથનો તે એ છે। પછી ઈશુ દેવના મંદિરમાં ગયો ને મંદિરમાં જેઓ વેચતા તથા ખરીદતા હતા તે સર્વને તેણે કાઢી મૂક્યા, અને નાણાવટીઓના બાજટ તથા કબૂતર વેચનારાઓના આસનો તેણે ઊંધા વાળ્યા। અને તેણે તેઓને કહ્યું કે મારું ઘર પ્રાર્થનાનું ઘર કહેવાશે એમ લખેલું છે, પણ તમે એને લૂંટારાઓનું કોતર કર્યું છે। અને આંધળા તથા લંગડા તેની પાસે મંદિરમાં આવ્યા ને તેણે તેઓને સાજા કર્યા। પણ જે ચમત્કારો તેણે કર્યા તથા જે છોકરા મંદિરમાં મોટે ઘાટે દાઉદના દીકરાને હોસાના કહેતા હતા, તેઓને જ્યારે મુખ્ય યાજકોએ તથા શાસ્ત્રીઓએ દીઠા ત્યારે તેઓ બહુ ગુસ્સે થયા। અને તેઓએ તેને કહ્યું કે એઓ શું કહે છે એ શું તું સાંભળે છે? ત્યારે ઈશુ તેઓને કહે છે કે આ બાળકોના તથા ધાવણાઓના મોંથી તે સ્તુતિ સંપૂર્ણ કરાવી છે, એ શું તમે કદી નથી વાંચ્યું? પછી તેઓને મૂકીને નગર બહાર બેથનિયામાં જઈને તે ત્યાં ઉતર્યો। दूसरा भाग पढ़ेंगे रोमनों की पत्री 6 और 23। रोमनों की पत्री 6 और 23। કેમ કે પાપનો મુસારો મરણ છે, પણ આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આશરે દેવનો કૃપાદાન અનંત જીવન છે। और आखिरी भाग पढ़ेंगे यशाया 59, यशाया 59 1 से 4 कलम, 1 से 4 आया। જુઓ, યહોવાનો હાથ એટલો ટૂંકો થઈ ગયો નથી કે તે બચાવી ન શકે, અને તેનો કાન એવો મંદ થયો નથી કે તે સાંભળી ન શકે, પણ તમારા અપરાધો તમારી ને તમારા દેવની વચમાં ભિન્નતા કરતા આવ્યા છે, અને તમારા પાપોએ તેનું મુખ તમારી તરફથી એવું ફેરવી નાખ્યું છે કે તે સાંભળે નહીં। કેમ કે તમારા હાથ લોહીથી ને તમારી આંગળીઓ અપરાધોથી અશુદ્ધ થઈ છે, તમારા હોઠો જૂઠું બોલ્યા છે ને તમારી જીભ દુષ્ટતા બબડે છે। ન્યાયને અનુસરીને કોઈ દાવો કરતો નથી ને સત્યથી કોઈ વાદ કરતો નથી। તેઓ વ્યર્થતા પર ભરોસો રાખે છે ને જૂઠું બોલે છે। તેઓ વિપત્તિનો ગર્ભ ધરે છે, દુષ્ટતા પ્રસવે છે। आइए दुआ करें।
हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज प्रभु यीशु पाम संडे को लेकर आपके पास जो हमारे पास वचन है, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है पवित्र आत्मा को आप हम पर उंडेल दें, ताकि पवित्र आत्मा वचन की सच्चाई में हमें ले जाए और वचन की सच्चाई हमें मुक्त कर दें। हम अधूरे आए हैं लेकिन भरपूर होकर जाना चाहते हैं। हम जैसे भी आए हैं आप वैसे वापस नहीं जाना चाहते। आपसे विनती करते हैं, आप हमसे बात करें, आप हमसे व्यवहार करें। आप प्रभु यीशुआ ज्ञान बुद्धि समझ और प्रकटीकरण की आत्मा हमें दें। आप प्रभु यीशुआ मसीहा इस वचन की सच्चाई में हमें ले जाएं और हम इंसान की नहीं आपकी आवाज सुनने आए हैं, इसलिए आप बोलें, आप हमसे बात करें, आप हमसे व्यवहार करें। आप हमारे हृदयों को और मनों को आज हिला दें, ताकि प्रभु यीशुआ आपके वचन के उजियाले में सही निर्णय हम ले सकें और इन निर्णयों को जब पकड़े रखें हमारे जीवन में बड़े काम हो और प्रभु यीशुआ मसीहा आप ही के नाम की महिमा हो। सारा आदर, सारा मान, सारी महिमा आपको देते हैं। और हमने दुआ की है, आपने सुनी है, बढ़कर जवाब दिया। ये विश्वास के साथ प्रभु यीशुआ मसीहा के नाम से ही प्रार्थना करते हैं, साथ में कहेंगे आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। बैठ सकते अपनी जगह। पाम संडे गुजराती में खजूरीनो रविवार बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। पाम संडे, पाम संडे के दिन क्या हो गया या पाम संडे का क्या मैसेज है, काफी पॉइंट्स है लेकिन मैं एक को पकड़ के चलूंगा। यहां पर लिखा है यीशु मसीह ने जिस दिन प्रवेश किया, ओके, बाइबल से थोड़ा ज्ञान आपको दे दूं या थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। पाम संडे जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, उसके 4 दिनों बाद गुड फ्राइडे, या तो 4 दिन बाद उनको मार दिया गया। ये उनका जो प्रवेश था, इसको विजयवंत प्रवेश भी बोला जाता है, क्योंकि उनको पता था कि आगे क्या होने वाला है। इसके बावजूद भी इन्होंने वहां पर कदम उठाया। क्योंकि वो मेंटली रेडी थे, उनको पता था, उन्होंने मानसिक विजय प्राप्त कर लिया था, उनको पता था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन इसके बावजूद उनकी नजर गुड फ्राइडे पर नहीं थी, उनकी नजर पुनरुत्थान पर थी। इसलिए बार बार अपने चेलों से वो उन्होंने कहा है कि देखो, हम यरूशलेम जाएंगे, 3 दिन में हम यरूशलेम जाएंगे और तो मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन तीसरे दिन मैं जिंदा होऊंगा। आमीन, आमीन। इसलिए इसको विजयवंत प्रवेश भी बोला जाता है। लेकिन हमारा विषय आज कुछ अलग, उसको पकड़ के चलते हैं। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने जब यरूशलेम में प्रवेश किया, तो यरूशलेम में प्रवेश किया तो लोगों ने उनको किस तरह से मान दिया। ऐसा लिखा है, जब गधी के बच्चे के ऊपर वो बैठकर गए, जिसके ऊपर अभी तक कोई नहीं बैठा था, उसके ऊपर बैठकर जब वे जा रहे थे, ये भी जकरिया 9 और 9 के अंदर भविष्यवाणी थी कि देख, तेरा राजा, तेरा परमेश्वर गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर आ रहा है। और गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। बाइबल कहती है दोनों साइड लोग खड़े रहे और लोग अपने कोट को उतार कर नीचे डाल रहे थे, जैसे रेड कारपेट वेलकम होता है। आपने देखा होगा या जाना होगा, जब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आता, प्लेन से उतरता है, किसी देश का प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, उसको मान देने के लिए यहाँ पर गाड़ी खड़ी रहती है और गाड़ी और प्लेन के सीढ़ियों के बीच में लाल कारपेट बिछाया जाता है, ताकि वो मान देते हुए उस रेड कारपेट पर चल कर आए, और उसको रेड कारपेट वेलकम बोलते हैं। यहाँ पर लोग अपने कोट को उतार कर डाल रहे थे और यीशु मसीह उसके या तो गधी का बच्चा उसके ऊपर चल के आगे बढ़ रहा था। और उतना ही नहीं, दोनों साइड ये लोग पाम यानी खजूरी उसकी डालियां लेकर खड़े थे और उसकी डालियों को वेव करते हुए, हिलाते हुए चिल्ला रहे थे, होसाना होसाना, दाऊद के बेटे को होसाना। और ऐसे समय लोग, फरोशी लोगों को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने कहा भी सही कि क्यों ये लोग तेरे लिए ऐसा चिल्ला रहे हैं, इनको मना कर दे कि ऐसी आवाज नहीं लगाए। यीशु मसीह ने कहा अगर ये नहीं चिल्लाएंगे तो याद रखना पत्थर भी पुकारेंगे। आमीन। तो यीशु मसीह को बहुत मान मिला, बहुत सम्मान मिला और यीशु मसीह आगे बढ़ते चले गए। मान और सम्मान क्यों दे रहे थे, ये हमारा विषय नहीं, लेकिन जानकारी के लिए बाइबल कहती है, आप घर जाकर पढ़ सकते हैं, यशाया 35वां अध्याय,
यशायाह 35वां अध्याय, यहूदी लोग वर्षों से मसीहा की राह देख रहे थे और मसीहा आएंगे तब क्या होगा उसकी काफी निशानियां दी गई थी पुराने नियम में। और उसमें से एक निशानी थी यशायाह 35वां अध्याय। यशायाह 35वें अध्याय में लिखा था, जब भी तुम देखो कि अंधे देखने लगे, जब भी तुम देखो कि लंगड़े चंगे होकर नाचने लगे, कूदने लगे, जब भी तुम बीमारों को छंगा होते हुए देखो, तो समझ लेना तुम्हारा यहोवा परमेश्वर तुम्हारे बीच में तुम्हें छुड़ाने के लिए आ चुका है। हालेलुया। और इसीलिए जब इन्होंने देखा कि आज तक तो हमने नहीं सुना या तो ना देखा कि किसी ने इस तरह से अंधों को देखता हुआ कर दिया या लंगड़ों को चलता हुआ कर दिया या मुर्दों को भी जिंदा कर दिया, तो सभी लोगों को पता चल गया था यही वो मसीहा है जिसकी हम अभी तक बाट जो रहे थे या तो राह देख रहे थे। लेकिन यीशु मसीह का आने का कारण ये लोग समझ नहीं पाए। ये लोग को एक ही चीज थी कि हमको गुलामी में से छूटना है, गुलामी में से बाहर आना है, क्योंकि ये जानते थे कि इनका मसीहा जब आएगा, यशायाह 11 भी आप पढ़ सकते हैं इसके लिए, जब इनका मसीह आएगा तो यहूदी लोग या इजरायली लोग इनके साथ 1000 साल राज करेंगे। इसलिए इनको पता था कि आज हम रोमन सरकार के गुलाम हैं, लेकिन जब हमारा मसीहा आएगा तो उसके साथ हम राज करेंगे। इसलिए इन्होंने क्या सोचा, वैसे मसीहा आने वाला है और इसके साथ यहूदी लोग 1000 साल राज करेंगे, लेकिन टाइमिंग में गड़बड़ी हो गई इनकी, क्योंकि यह पुराने नियम में 2 बार यीशु मसीह का आना। पहली बार वो उद्धारकर्ता की नाई, उद्धार करने के लिए सफरिंग सर्वेंट जिसको बोलते हैं, सहन करने वाला, यशायाह 53 में जो वर्णन दिया गया। और दूसरी बार जब वो आएंगे राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की तरह पूरी दुनिया पर राज करने के लिए, तब ये इनके साथ राज करेंगे। लेकिन इन्होंने अभी जो होने वाला है वो उसी वक्त समझ लिया, इसीलिए ये लोग मान देने लगे। इनको ऐसा लगा कि यीशु मसीह यहां से रोम जाएंगे और कैसर को हटाकर अपनी गादी वहां पर स्थापित करेंगे और हम उनके साथ 1000 साल राज करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इंसान के साथ जब वो सोचता है नहीं होता है, तो हो सकता है कि वो बलवा करे। और ऐसा ही यहां पर हुआ। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह रोम नहीं गए, इन्होंने इतना मान दिया होसाना होसाना। होसाना का क्या मतलब होता है? होसाना का मतलब होता है अभी तो मुझे छुड़ा सकता है, या तो अभी मुझे छुड़ा, यानी और कोई दिन की बात ही नहीं है। इसलिए हम जब गाते हैं हम गाए होसाना, इसका मतलब क्या है? अभी हालत मानिया काट, अभी तो मुझे छुड़ा सकता है, अभी इसी वक्त। मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर कल का परमेश्वर नहीं है, अभी का परमेश्वर। आमीन आमीन। इसलिए लोग होसाना होसाना क्यों चिल्ला रहे थे? क्योंकि होसाना के द्वारा ये बता रहे थे हमें विश्वास है अभी तू हमें छुड़ा लेगा, अभी तू गुलामी से बाहर निकाल देगा। लेकिन ये बातें भविष्य में होने वाली थी। यीशु मसीह ना रोम गए ना कैसर के पास गए। बाइबल बताती है सीधा ही ये यरूशलेम के मंदिर के अंदर गए और मंदिर के अंदर जाकर इन्होंने ये किया जो किसी ने सोचा ही नहीं था। लिखा है वहां पर जाकर इन्होंने चाबुक उठाई। यूहन्ना 2 अगर पढ़े तो यूहन्ना 2 में लिखा है चाबुक भी इन्होंने खुद बनाई और बनाकर लिखा है ऐसा मारा है, टेबलों को उठाकर फेंका है और इस तरह से वहां पर मारपीट शुरू कर दी। और ये कहते हुए कि लिखा हुआ है मेरे पिता का घर वो प्रार्थना का घर होगा, तुमने उसको लुटारुओं का अड्डा बना दिया, तुमने उसको लूटपाट करने की जगह बना दी। और ऐसा पीटा, मैं कई बार सोचता हूं कि उस वक्त किसी को ये तो पता नहीं था कि ये परमेश्वर खुद इंसान के रूप में है। लोग ये नहीं जानते थे, लोग जानते थे कि एक रब्बी है जिसके द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे हैं। लेकिन मैं कई बार ये सोचता हूं कि 4 व्यक्ति भी इनके सामने खड़े नहीं हुए तो क्या जुस्सा होगा या क्या गुस्सा होगा कि जिसकी वजह से लोगों ने सोचा होगा कि इससे दूर ही रहो। क्योंकि जब सभी लोग वहां पर उल्टा सीधा कर रहे हैं और एक आदमी खड़ा होकर उनके सामने जब उल्टा सीधा फेंकना शुरू कर दे तो एक आदमी भी खड़ा नहीं हो रहा, तो इतना तो समझ में आता है कि क्या गुस्सा होगा। आमीन। यहां तक कि चेलों के बारे में लिखा है, ऐसा नहीं कि यीशु मसीह के साथ चेले भी वहां पर उल्टा सीधा करने लगे। चेलों के बारे में लिखा है साइड में खड़े होकर ये लोग अंदर अंदर बात करने लगे। इनको भजन संहिता की एक आयत 68 में लिखा वो याद आ गई कि लिखा हुआ है द ज़ील ऑफ दाई लॉर्ड्स
of the Lord's house has consumed me. गुजराती में लिखा है तारा घरनी आस्था मने खाई जाएगी, या तेरे घर का पागलपन मुझे खा जाता है, क्योंकि परमेश्वर के घर में उल्टा सीधा चल ही कैसे सकता है। यीशु मसीह ने जब ये करना शुरू कर दिया, लोगों से ये बात सहन नहीं हुई, फरोशियों से, सदूकियों से ये बात सहन नहीं हुई। अरे मंदिर की व्यवस्था हमारे हाथ में है, जो भी चल रहा है हमारी मेहरबानी से चल रहा है, तू कौन होता हाथ उठाने वाला। लेकिन इसी वजह से गुड फ्राइडे आया, इसी वजह से लोग जो आज होसाना होसाना बोल रहे थे, कल घूम गए और कहने लगे इसको मार दो, इसको मार दो। क्यों? क्योंकि हमने सोचा था वो ये मसीहा नहीं है। जब लोग आपके जीवन में क्या सोचेंगे और कुछ और निकलेगा, तो उनके हिसाब से जब नहीं होगा तो वे आपके सामने खड़े हो जाएंगे। आमीन, ये सच है। एनीवे, आज के विषय को हम पकड़ के चलते हैं। ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने कोई इनको चिंता नहीं थी, उल्टा सीधा सब कर दिया। कहा मेरे पिता का घर वो लुटारों का अड्डा नहीं रहेगा, मेरे पिता का घर वो प्रार्थना का घर रहेगा। उसके बाद में लिखा हुआ है, फिर जब यीशु मसीह वहां पर बैठे तो लोग उनके पास आए, बीमार लोग उनके पास आए, और यीशु मसीह ने इस तरह से उनको चंगा किया कि लिखा है छोटे बच्चे भी स्तुति करने लगे, छोटे बच्चे भी आराधना वहां पर करने लगे। पाम संडे का मुख्य विषय या पाम संडे जो हमको सिखा जाता है वो ये है, आज क्या है, लोग चंगाई के पीछे भाग रहे हैं, आज लोग आशीषों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन पाम संडे हमको याद दिलाता है, पहले मंदिर को ठीक करना जरूरी है, पहले पाप का समाधान प्राप्त करना जरूरी है, उसके बाद चंगाई आएगी, उसके बाद आशीष आएगी। आमीन। लोगों को चंगाई चाहिए, लेकिन यीशु मसीह को सबसे पहले मंदिर ठीक करना है। ऐसा गुजराती में ऐसा बोलते हैं कि घोड़ो आगड़ लागे गाड़ू पाछड़ लागे। आमीन। जो पहले होता है वो पहले ही होता है। कई बार लोग, आज लोगों को यीशु मसीह से लेना देना नहीं है, लोगों को आशीषों के पीछे पागल हो जाना है। लेकिन परमेश्वर का नियम कभी बदलता नहीं है। आप याद रखना, कर्जा कितना भी होगा, आप मर जाओगे, आप कर्जे से छूट जाओगे। अगर आपको कैंसर भी होगा, आप मर जाओगे, कैंसर से छूट जाओगे। आपको कोई भी तकलीफ, कोई भी बीमारी, कोई भी अशांति होगी, आप मर जाओगे, उससे छूट जाओगे। लेकिन बाइबल हमको यूं बताती है, पाप नहीं छोड़ता। पाप ना इस जीवन में आपको छोड़ेगा, ना अगले जीवन में छोड़ेगा। इसे लिखा है, पाप की कमाई मृत्यु है, पाप मुसारो मरण छे, फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। पाप ना आपको इस जीवन में छोड़ेगा। लिखा है लोग 16 में, एक व्यक्ति, इतना पैसा था उसके पास, इतना सारा पैसा था, उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं था, उसको किसी की पड़ी नहीं थी। लेकिन लिखा है जब वो मरा तो सीधी उसकी आंखें हाडेस के अंदर, या तो दूसरे शब्द में कहें तो नर्क के अंदर उसकी आंखें खुली, वहां पर खुली। उसका पैसा भी उसको बचा नहीं पाया। पाप ने उसको उस जीवन में नहीं छोड़ा। पाप आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन, आमीन। और इसीलिए हमारा परमेश्वर वो चाहता है, ये चाहता है कि विश्वास से उसके जीवन से पाप पहले दूर हो जाए। आदम और हवा पाप की वजह से गिरे, इतना गिरे कि बाइबल हमें यूं बताती है कि आदम जो पंछियों को, जानवरों को नाम देकर बुलाता था, बाइबल हमें बताती है कि वही राजा और रानी इस सृष्टि में गुलाम हो गए पाप करने की वजह से। पाप की कमाई वो मृत्यु है। ये परमेश्वर ने कहा था, अगर मेरी आज्ञा के मुताबिक नहीं करोगे तो मरोगे ही मरोगे, मरसो ज मरसो। और आज अगर विश्वासी मसीही जीवन को हम सोचें तो आज कितनी सारी बार आज विश्वासी लोग, मेरा दोस्त है दिल्ली में, हम लोग बात कर रहे थे बीच में, जेपी साहब से भी ये बात मैं बीच में कर रहा था कि पहले जो हमने देखा, पहले यानी कुछ बहुत वर्षों पहले की बात नहीं है, 15-20 वर्ष पहले जब हम लोग चर्च में स्तुति आराधना करते थे, मैं साहब को बोलता था, मेरा दोस्त भी मुझे बता रहा था कि यार पहले अपने स्तुति आराधना भी करते थे तो आंख में से आंसू बहते थे। आज तो चर्च में से किसी को आंसू भी आंख में से नहीं बहते। जब पहले प्रचार भी किया जाता था तो लोग रोते थे, आज किसी को रोना भी नहीं आता है, आज किसी को दिल में कुछ होता भी नहीं है। पहले पेपर में अगर हमने पढ़ लिया कि एक माँ मर गई और अपने 3 बच्चों को भी उसने मार दिया, तो वहां पर भी न्यूज़पेपर में आंसू गिरते थे। आज किसी को ऐसा पड़ रहा है, किसी को हृदय में कुछ होता ही नहीं है, किसी को लोग जिए लोग मरे कुछ भी हो गया, हमको क्या लेना देना।
दुनिया के लोग जिए, लेकिन मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूँ। विश्वासी लोग आज इतने ठंडे हो गए हैं और इसका बहुत बड़ा कारण है विश्वासी लोगों को चंगाई चाहिए। अगर किसी ने बोल दिया आ जाओ इधर सब चंगे होंगे, इनको भविष्यवाणी चाहिए, बीच में से नाम देकर बुला दो, तो वहां पर देखो कितनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मुझे परमेश्वर दिखा रहा है ऐस पर से कोई है जिसको घुटनों का दर्द है, ऐस पर से कोई ना कोई जरूर होगा और घुटनों का दर्द ऐसे ही होगा। आमीन आमीन आमीन। अभी थोड़ी देर पहले है ना जगदीश भाई ऐसे करके बैठे थे। अभी मैं यूं बोल दूं जे पर से कोई है उसको कमर में कोई तकलीफ है। अभी घर में कोई गुजर गया है, मैं यूं बोल दूं शेला बहन मुझे परमेश्वर दिखा रहा है आप कितने दिन से सोए नहीं। अरे भाई कोई मर जाए तो घर में मेहमान इतने आते हैं, कितना खिलाओ पिलाओ। ये सब करने नाटक करने से लोगों को मजा आता है, लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन यीशु मसीह ने किसी देखो यहाँ पर लोग प्रशंसा कर रहे थे यीशु मसीह को प्रशंसा की कोई पड़ी नहीं थी। आप घर जाकर पढ़ सकते हैं यूहन्ना का 2 अध्याय आखिरी 2 आयत में यूं लिखा है लोग इतनी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन मुझे इंग्लिश में ज्यादा अच्छा लगता है। वहां पर लिखा है बट ही न्यू व्हाट वाज इन अ मैन सो ही डिडंट केयर अबाउट इट। यीशु मसीह को पता था कि इंसान के अंदर क्या है, इसलिए किसी की प्रशंसा की उनको पड़ी नहीं थी। उनको इस बात की पड़ी थी पहले मंदिर साफ होना चाहिए, पहले मंदिर शुद्ध होना चाहिए। आमीन आमीन। काइन और हाबिल के बारे में भी लिखा है। काइन के बारे में कई बार लोग पूछते भी हैं कि मुझे अभी शायद किसी ने पूछा, 2 व्यक्तियों ने पूछा कि बादशाह साहब काइन का बलिदान परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, हाबिल का स्वीकार कर लिया, क्यों? क्योंकि कई लोग ऐसा सिखाते हैं कि हाबिल है ना वो चरवाहा था और वो चरवाहा था, इसलिए वो भेड़ बकरियों में से बलिदान लाया, जानवर का बलिदान लाया, और काइन है वो किसान था तो अपने फसल में से लाया। तो हाबिल लहू को लेकर आया, इसलिए हाबिल के बलिदान को परमेश्वर ने स्वीकार किया और उसको नहीं किया। ऐसा है ही नहीं। अरे जब तुम किसान हो तुम्हारी जो उपज है उसमें से तुम लाओगे। आमीन। लेकिन बाइबल क्या बताती है? उत्पत्ति 4 अध्याय 3 आयत से अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर ऐसा लिखा है परमेश्वर ने काइन को नकार दिया इसलिए उसके अर्पणों को नकार दिया, हाबिल का स्वीकार किया इसलिए उसके अर्पणों का स्वीकार किया। पहले आप आते हैं। आपको अगर परमेश्वर स्वीकार करेगा तो आपके हर अर्पणों को स्वीकार करेगा, लेकिन आपको ही स्वीकार नहीं किया तो करोड़ रुपया लाकर रख दो उसको भी स्वीकार वो नहीं करेगा। आमीन। पहले उसको मंदिर, बाइबल इसीलिए कहती है कि मंदिर आज नए नियम के हिसाब से परमेश्वर का मंदिर हमारा शरीर है। ये मंदिर के अंदर आज भी बहुत सारी गंदगियां हैं। ये मंदिर सोचता है कि मुझे चंगाई क्यों नहीं मिल रही है, मेरी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं आ रहा, 3 दिन उपवास किया तो भी मेरे को जवाब नहीं मिलता। लेकिन मंदिर को पहले साफ होना जरूरी है, शुद्ध होना जरूरी है। यीशु मसीह की योजना ये नहीं कि आपको प्रार्थना का जवाब मिल जाए और फिर आप नाश में चले जाओ। वो पहले चाहते हैं पहले स्वर्ग के लिए तुम तैयार हो जाओ, उसके बाद आशीषें आएंगी। आमीन आमीन। पूरे बाइबल में आरंभ से अंत तक इस विषय को हम देखते हैं। अगर और एक उदाहरण लें तो बाइबल हमें यूं कहती है, यहोशुआ 7 अध्याय, चलो पहली आयत पढ़ते हैं। यहोशुआ 7 और 1। यहोशुआ 7 और 1। પણ ઇસ્રાયેલ પુત્રોએ શાપિત વસ્તુ વિશે અપરાધ કર્યો, કેમ કે યહૂદાના કુળમાંના ઝેરાહના પુત્ર ઝાફરીના પુત્ર કાર્મીના પુત્ર આખાને તે શાપિત વસ્તુમાંથી કંઈ લઈ લીધું અને यहोवाનો કોષ इस्राएल पुत्रों पर सड़की उठ्यो। अब आप घर जाकर पढ़ सकते हैं 5, 6, 7 अध्याय एक साथ पढ़ेंगे तो पूरा पिक्चर आपको क्लियर होगा। बाइबल हमें यूं बताती है 6 अध्याय के अंदर इजराइलियों ने यरीको को जीत लिया। यरीको उस जमाने का सबसे शक्तिशाली किला था। इस किले को इन्होंने जीत लिया तो बहुत बड़ी जीत इनको हासिल हो गई। लेकिन 7वें अध्याय में लिखा है आई इतना छोटा एक शहर था, इतना छोटा कि बाइबल हमें यूं बताती है शायद 3 और 4 आयत में कि लोग यहोशुआ को जाकर क्या बोलते हैं, अरे इसके लिए तो 3-4 हजार व्यक्ति भेज दो, बहुत हो गया, इसके लिए हजारों लोगों को जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो बहुत ही छोटा शहर है। यरीको हमने जीत लिया, इतना बड़ा शहर हमने जीत लिया। तो आई क्या है
लेकिन बाइबल बताती है आई के सामने जब ये लोग गए तो भागना पड़ा, जान बचाकर भागना पड़ा। और इसके बाद इतनी इतनी मार खाई, इतनी चोट खाई, यरीको का विजय इनको यहां पर काम नहीं लगा। तो यहोशुआ परमेश्वर के आगे झुक कर क्या बोलता, देखो 7वां अध्याय 7वीं आयत पढ़े पहले। ત્યારે યહોશુઆ બોલ્યો, અરે રે હે પ્રભુ યહોવા, અમને અમોરીઓના હાથમાં સોંપીને અમારો નાશ કરવા સારો તું આ લોકને યર્દન પાર લાવ્યો જ કેમ? અમે સંતુષ્ટ થઈને યર્દનની પેલે પાર રહ્યા હો તો કેવું સારું। देखो थोड़ी सी चोट लगे कि विश्वासी व्यक्ति की हवा निकल जाती है। यरीको को आपने जीत लिया है और यहां पर आप ये कोशिश नहीं कर रहे कि हम क्यों हार गए, लेकिन अब हार गए तो क्या बोलता है, परमेश्वर लाया ही क्यों यहां पर। अरे 5वें अध्याय में तो तुम खड़े होके बोल रहे थे इजराइल लोगों को अपने आप को शुद्ध करो, देखो कल परमेश्वर हमारे लिए यर्दन से भी रास्ता निकालेगा। यर्दन नदी का बहाव भी तुमने रोक दिया और इस पार से उस पार आए। और तुमने एक अध्याय के पहले यानी 6ठे अध्याय में यरीको सबसे शक्तिशाली शहर को तुमने जीत लिया, लेकिन अब छोटी जगह में मार खा गए, छोटी जगह में हार गए। तो देखो यहोशुआ डायरेक्ट क्या बोलता है, लाया ही क्यों परमेश्वर यहां पर। यानी परमेश्वर के आगे एक तरीके से बोल सकते हैं बकवास करने लगा, परमेश्वर ने नहीं चलाया, फिर परमेश्वर का दिमाग गया। चुप, क्या बोलते हैं परमेश्वर 10वीं आयत से देखो आगे 7 અને 10। हाँ ત્યારે યહોવાએ યહોશુઆને કહ્યું કે ઊઠ, એમ ઊંધો કેમ પડ્યો છે? ઇસ્રાએલે પાપ કર્યું છે, હા તેઓએ તો જે કરાર મેં તેઓને ફરમાવ્યો હતો તેનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે। હા તેઓએ તો શાપિત વસ્તુમાંથી કંઈક લઈ પણ લીધું છે અને વેચી ચોરીને દંગો પણ કર્યો છે ને વળી પોતાના સામાનની મધ્યે તેઓએ તે સંતાડ્યું છે। आगे એ કારણથી ઇસ્રાએલ પુત્રો તેમના શત્રુઓની આગળ ટકી શકતા નથી, તેઓ તેમના શત્રુઓની આગળ પીઠ ફેરવે છે, કારણ કે તેઓ શાપિત થયા છે। તમે તમારામાંથી શાપિત વસ્તુનો નાશ નહીં કરો तो हूँ तुम्हारी साथे कदी रहनार नहीं। हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है इधर, परमेश्वर ने यहोशुआ को क्या बोला, चल खड़ा हो जा, रोना धोना बंद कर, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। 10वीं आयत में परमेश्वर उसको एंटरटेन नहीं कर रहा है, परमेश्वर क्या बोलता है, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। तुझे पता है क्योंकि यरीको के अंदर परमेश्वर ने बोला था ये शहर में से जो कुछ मिलेगा उसमें से वो सब कुछ मेरा होगा, ये शहर मैं तुम्हें दे रहा हूं, सब कुछ मेरा होगा, इसमें से कुछ भी तुमको नहीं लेना, कुछ भी तुमको हाथ नहीं लगाना। फिर भी लिखा है अखान के बारे में, इसने वहां पर जाकर थोड़ा सा खजाना ले लिया और अपने परिवार के लिए उसने छुपा दिया। या तो परमेश्वर यहां पर यहोशुआ को क्या बोल रहा है, यहोशुआ को यूं बोल रहा है जो मना किया था वही तुमने किया, तुम्हारे बीच में से किसी ने किया है, पहले उस पाप का समाधान करो, अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। इसीलिए तुम हार गए क्योंकि तुम्हारे बीच में पाप है, पहले पाप का समाधान करो। आमीन। पहले विजय की बात मत करो, पहले इसको हरा देंगे ना उसको हरा देंगे, पहले हम जीत जाएंगे, ये सब बातें मत करो। पहले तुम्हारे बीच में पाप है, उसको खोज निकालो, उसका समाधान लाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा ही नहीं। ऐसा परमेश्वर ने डायरेक्ट बोल दिया। आमीन आमीन आमीन। आप याद रखें जो परमेश्वर मिस्र से छुड़ा कर लाया, जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बड़े काम किए, और यहोशुआ को भी यूं कहा कि जैसे मूसा के साथ में था वैसे मैं तुम्हारे साथ में हूं। लेकिन ये परमेश्वर पाप नहीं चलाता है, पाप के साथ ये खड़ा नहीं रहता है, इसीलिए ये चाहता है कि विश्वासी व्यक्ति पहले अपने जीवन से पाप को दूर करे। आमीन आमीन आमीन। इसीलिए बाइबल आगे बताती है कि यहोशुआ ये लोग जब हार गए तो परमेश्वर ने कहा यहोशुआ को शायद होगा कि मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर बोलेगा ठीक है चल, लेकिन परमेश्वर ने नहीं बोला। परमेश्वर ने क्या बोला, खड़ा हो जा, रोना धोना बंद कर, पहले तुम्हारे बीच में पाप कहां है उसका सॉल्यूशन लेकर आओ, उसका निराकरण पहले लाओ। और बाइबल कहती है कि इसने अखान को पकड़ा, और जब अखान के पास भी बहुत मौका था कि ये बोल सकता था कि मुझसे गलती हुई है, यहोशुआ ने कहा सभी को खड़ा किया, 12 कुलों को खड़ा किया, तभी भी ये नहीं बोला। यहूदा का कुल इन्होंने अलग किया तो भी नहीं बोला, इस कुल में इसके घराने को अलग किया तो भी नहीं बोला।
लेकिन आखिर में परमेश्वर ने अगुवाई दी कि यही आदमी है। तो ऐसा बोला इनको इतने पत्थर मारो ताकि आज के बाद कोई पाप न करे। पाप क्यों ना करे? क्योंकि पाप करने से आप विजय नहीं प्राप्त कर सकते। पाप अगर जीवन में होगा, यहाँ पर लोगों को जो चाहे, क्यों इंसान को ज़्यादा, विश्वासियों को ओके, कितने लोगों की गवाहियां मैंने सुनी। एक व्यक्ति बोलते हम पंजाब जाके आए तो मेरा कैंसर मिट गया। अरे कैंसर तुम्हारा मिट गया, लेकिन स्वभाव में तो कोई ठिकाना नहीं, तुम उद्धार पाए नहीं। आज भी तुम्हारे मुंह से गालियां निकलती है, आज भी तुम्हारे मुंह से श्राप निकलता है, आज भी तुम्हारी बहू बोलती है कि मेरी सास आज भी ऐसे भाषा इस्तेमाल करती है। अरे तो तुम्हारे जीवन में मंदिर तो साफ हुआ ही नहीं, जबकि प्रभु यीशु की मर्जी क्या है? पहले मंदिर साफ किया जाए। आमीन आमीन आमीन। पाम संडे हमको याद दिलाता है पहले परमेश्वर हमारे जीवन में जो पाप है उसको साफ करना चाहता है। आपको पता है आपके घर के अंदर कोई आएगा और अगर आपके घर के अंदर आकर कोई कहे, मैं अपने कुछ उदाहरण देता हूँ, मैंने तो देखा हुआ है। एक बार मेरा कजिन मुझे बुलाने आया कि हमारे घर पे एक सेवक प्रार्थना करने के लिए आए हैं, तो आप भी आइए। मैंने कहा जरूर मैं आता हूं। मैं जब गया तो देखा वो परमेश्वर का सेवक उनके सोफा के ऊपर ऐसे सो के ऐसे लेटा हुआ था। पहली बार घर में आया है, मैं तो उसको देख रहा था। आप दूसरे किसी के घर में जाकर ऐसे लेट सकते हैं क्या? और अगर आप ये सोचें कि अगर आपके घर पे कोई आए और कोई आकर आपको बोलना शुरू कर दे, उदाहरण के तौर पे स्टेला बहन के घर पे मान लो कोई आए और बोले स्टेला बहन किचन इधर से हटाओ, गैलरी में किचन लगाओ, गैस स्टोव इधर लगाओ, चलो फ्रिज इधर रखो, तो हम क्या सोचेंगे? निकल तो इधर से, तू है कौन भाई? घर हमारा है, तू वहां से हमको बोलेगा ये किधर रखना हमको पता है। आमीन। बाहर से कोई आकर ऐसा बोलेगा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। आमीन। लेकिन आत्मिक जीवन में उल्टा है। आत्मिक जीवन में कैसा पता है? जिस दिन हमने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, उस दिन यीशु मसीह को क्या बोला हमने? प्रभु आप मेरे जीवन के अंदर आकर रहो, इस मंदिर में आप रहो। अभी मैं आपका हूं, अभी आप मेरे प्रभु हैं। आप प्रभु हैं यानी अभी आप बोलोगे वो मैं करूंगा। और फिर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, ठीक है बेटा ये गलत रिश्ता है, इसको बंद कर दे। प्रभु ये तो कुछ ज्यादा हो रहा है, मैं तो 5 साल से सिगरेट पी रहा हूँ, अभी नहीं छोड़ सकता। अभी बोलना शुरू, अभी दारू पीना बंद कर दे, अभी ये बंद कर दे, वो बंद कर दे। तो इसीलिए फिर क्या करते लोग पता है? यीशु मसीह एक काम करो, ये तो मेरे बहुत मुश्किल हो गया, आप बाहर ही रहो। इसलिए बाइबल बताती है बाहर से दस्तक दे रहा हूँ क्योंकि मुझे बाहर निकाल दिया। अगर खोलोगे तो मैं अंदर आऊंगा। क्यों बाहर निकाल दिया? आ नहीं पोसाएगी, आ तो वो उधार पड़, आ नहीं पोसाएगी। लेकिन यीशु मसीह पाम संडे हमको यूं कह जाती है कि प्रभु यीशु इस मंदिर को साफ करना चाहते हैं। अगर आपने कहा कि प्रभु यीशु आप मेरे अंदर आओ, तो आप इतना समझ लेना, चोट जरूर लगेगी, अच्छा नहीं लगेगा। जब आपको पता है कि सोफा इधर ही होना चाहिए, बरसों से इधर है, लेकिन अगर यीशु मसीह बोलते इधर नहीं बेटा अभी इधर लगाओ, तो मुश्किल जरूर होगा हटाने में। और जब आप हटाओगे भी ना तो नीचे इतना कचरा निकलेगा, क्योंकि अभी तक अच्छी तरह से साफ कर ही नहीं पाए थे। आपको लगेगा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपको चंगाई चाहिए, आपको दुआओं का जवाब चाहिए, आपको बड़े काम चाहिए, तो पहले मंदिर साफ होना जरूरी है। आमीन। पहले मंदिर साफ होना जरूरी है। प्रभु यीशु को चंगाई में या दूसरी भविष्यवाणियों में, दूसरी बातों में इंटरेस्ट बाद में है। पहले पाम संडे बताता है वो मंदिर साफ करने के लिए गए। आज हमें ये सोचना है ये मंदिर कितना साफ है। अभी भी कुछ भी मुंह से निकलता है, अभी भी कुछ भी सोच लेते हैं, अभी भी कुछ भी किसी को गाली सुना देते हैं, अभी भी कोई कुछ बुरा बोल जाए तो उसको हम कैसे भी श्राप सुना देते हैं। अभी भी मंदिर साफ नहीं है। मंदिर को पहले साफ होना जरूरी है। आमीन आमीन।
क्यों हमारे पास बड़ी गवाहियां नहीं है? क्यों आई जैसी छोटी बातों के सामने लोग हार जाते हैं? क्योंकि अभी तक परमेश्वर और हमारे बीच। ओके, बहुत ही अच्छी आयत हमने पढ़ी है। अगर उसी को देखें, यशाया 59:1-4 क्या लिखा है? परमेश्वर क्या बोलते हैं यहाँ पर इस्राएली लोगों को? देखो मेरा हाथ अभी भी छोटा नहीं हो गया कि मैं तुम्हें बचा ना सकूं। देखो मेरे कान अभी भी बहरे नहीं हो गए कि मैं तुम्हारी दुआओं को सुन ना सकूं। लेकिन फिर क्या बोलते हैं? लेकिन तुम्हारे पाप मेरे और तुम्हारे बीच में इतनी बड़ी दीवार करके खड़े हैं कि तुम कितनी भी प्रार्थना करो मैं उसको सुनूं ही नहीं। तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं, परमेश्वर बोलते हैं। तुम्हारे होठ झूठ से भरे हैं। धार्मिकता तुम्हारे बीच में है नहीं। गुजराती में न्यायी बातों छेद नहीं तुम्हारी बच्ची। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो मैं सुनता ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में तुम्हारे पाप की दीवार तुमने खड़ी करी है। परमेश्वर क्या चाहते हैं? ओके, और एक आया दूसरा दूसरा इतिहास 7 और 14। परमेश्वर क्या बोलते हैं 13 और 14 में? अगर आसमान से बारिश न हो, अगर अकाल पड़ने लगे, अगर महामारी फट जाए, उस वक्त में परमेश्वर क्या बोलते हैं? अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से जाने जाते हैं, अगर वे अपने आप को नम्र करें, अगर वे पाप से फिरें, अगर वे दुष्ट मार्ग से फिरें, वे अगर मेरे आगे नम्र हो जाए, तो लिखा है तो मैं उनकी दुआओं को सुनूंगा और उनको क्षमा करूंगा, उनके देश को मैं चंगा करूंगा। आमीन, आमीन। हम कितनी बार ऐसे बात करते हैं या ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे हमसे तो कुछ गलती हुई नहीं। भाई गलती होगी तो तुम्हारी होगी, सॉरी मेरे से तो कोई गलती होती ही नहीं। अरे याद रखें, बाइबल हमें यूं बताती है, ये वचन भी परमेश्वर ने किस लिए दिया? ताकि हर दाग को हटाए, हर झुर्रियों को हटाए, क्योंकि दाग अभी भी हैं, झुर्रियां अभी भी हैं। आमीन, आमीन, आमीन। इसलिए पाम संडे का मैसेज ये है कि हमको चंगाई में इंटरेस्ट है, हमको आशीषों में इंटरेस्ट है, हमको दूसरी बातों में इंटरेस्ट है, लेकिन परमेश्वर को पता है पाप हमें नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसको पहले पाप में इंटरेस्ट है। पहले पाप का समाधान प्राप्त करो, पहले अपने जीवन से जीवन को शुद्ध करो, पवित्र करो। लिखा है उस मंदिर को शुद्ध करने के बाद यीशु मसीह ने तुरंत ही बीमारों को चंगा करना शुरू कर दिया। वो चंगा करना चाहता है, वो अधूरी प्रार्थनाओं का जवाब देना चाहता है, बड़े काम कर मैं तो कल्पना करता हूं कैसे काम प्रभु यीशु ने शुरू कर दिए होंगे। कैसे लिखा है, ये देखकर छोटे बच्चे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलने लगे कि भरोसे आकर बोलते, छोटे बच्चों को बोलो मुंह बंद रखे। जब तभी यीशु मसीह ने कहा, लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है? भजन संहिता गीत शास्त्र 8 और 2 के अंदर लिखा है, वो बच्चों के मुंह से भी अपनी स्तुति करवाएगा। आमीन। लेकिन क्या काम किए होंगे, क्या चंगाई करी होगी, कैसे काम किए होंगे कि छोटे बच्चे भी स्तुति करने लगे, वो भी आराधना करने लगे। लेकिन पहले मंदिर का शुद्ध होना, साफ होना जरूरी। आमीन, आमीन। हम लोग तो ऐसे गले लगते हैं कई बार, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, क्या खुशी होगी आपको मिलकर। वो परमेश्वर ही जानता है कितनी खुशी होगी। अंदर तो सड़न है, अंदर तो धुआं निकल रहा है। देखिए बहुत अच्छा, रुचि को जब भी देखता हूँ बहुत अच्छा लगता है। शादी हो गई रुचि की, लेकिन अच्छा तो नहीं लगता क्योंकि मेरी तो हो ही नहीं रही है। वो तो खाली बोलने के लिए। विश्वासी लोग क्या नाटक करते हैं और फिर चाहते हैं कि बड़े काम क्यों नहीं हो रहे, चाहते हैं क्यों मेरी दुआओं के जवाब नहीं आ रहे। कई लोग तो परमेश्वर ही जानता है, अगर परमेश्वर होता ना तो प्रभु क्यों मेरी दुआ सुनता नहीं है, क्या 3 दिन हो सके तो परमेश्वर बोला तेरा ठिकाना नहीं है। कितनी प्रार्थना की तूने जरा बता। अगर ऐसे सामने से आवाज आने लगे तो देखो सबके नाटक बंद हो जाएंगे। बहुत प्रार्थना की, जो लोग बोलते हैं ना बहुत प्रार्थना की, उन्होंने कुछ बहुत जैसा कुछ भी नहीं किया होता। हमको बहुत प्रार्थना की जरूरत नहीं है, पहले ये बोलने की जरूरत है, प्रभु मुझे शुद्ध करो। आमीन। आप बोलो मैं करूंगा, आप बोलो, क्योंकि ये शरीर आपका है, ये मंदिर आपका है, आपने मूल्य दे के खरीदा है। आप बोलो। आप मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा, तोड़ फोड़ होगी अच्छा नहीं लगेगा, इधर का उधर उधर का इधर करना पड़ेगा अच्छा नहीं लगेगा, आँख में से आंसू भी निकलेंगे क्योंकि हम लोग कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा कंफर्टेबल है। अभी जो उसमें अगर इधर का उधर का इधर करने के लिए आए तो बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रभु यीशु आपकी मर्जी पूरी होगी, आप चाहते हैं हो तो जरूर, क्योंकि
हमारे जीवन में यहोशुआ की तरह कितने अनुभव हमने कर लिए। कई बार हम सोचते हैं क्यों इसका जवाब नहीं मिलता, क्यों ये छोटी परिस्थिति मुझे हरा के चली गई, क्यों यरीको हमने जीत लिया, बड़ी गवाही मेरे पास है, लेकिन ये छोटी बात क्यों मुझे परेशान कर रही है। इसलिए यरीको के समय पाप नहीं था, आज पाप है, उसको पहले हटाओ। आमीन, उसको पहले हटाओ। एक व्यक्ति गलत लड़के के साथ लफड़े में, और पास्टर साहब मुझे फरियाद कर रहे हैं, उनके जो पास्टर हैं वो मुझे फरियाद कर रहे हैं कि पास्टर साहब आप सोचो ये एकदम गलत रिश्ता है, और मेरी हालत क्या होगी जब आज मुझे पता चल रहा है कि मेरे ही चर्च का जो वर्शिप लीडर है उसी के सपोर्ट से ये गलत रिश्ता आगे बढ़ा है। और अब मुझे पता चल रहा है कि वही वर्शिप लीडर की शादी टूटने पर है क्योंकि वही आज गलत रिश्ते में है। विश्वासी व्यक्ति में इतनी समझ होनी चाहिए, पाप वो पाप है। आमीन, आमीन। पहले आशीष नहीं आती है, पहले पाप का समाधान आता है। आमीन। कोई गलत कर रहा है, अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आप समझ लेना कि आपके लिए वो पाप है ही नहीं, और आपके लिए वो पाप नहीं है तो कल आप भी उस पाप में गिरोगे, क्योंकि आपके लिए वो पाप है ही नहीं। और परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट है, पाप की कमाई मृत्यु है। पाप आपको गुलाम बनाकर रख देगा, पाप आपको सारी आशीषें रोक के रख देगा, निचोड़ के रख देगा, राजा से गुलाम बनाकर रख देगा। इसलिए परमेश्वर हमारा चाहता है कि सबसे पहले पाप का समाधान मिले। आमीन। एक आखिरी उदाहरण देकर मैं खत्म करता हूं। बाइबल हमें यूं बताती है गोलियात के बारे में। गोलियात के बारे में ऐसा लिखा है, गोलियात हर रोज इस्राएलियों के सैन्य के सामने आता था और आकर चिल्लाता था और आकर यूं बोलता था, है तुम में से कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरे सामने लड़ाई कर सके, है तुम में से कोई व्यक्ति जो मेरे सामने खड़ा हो सके। और यूं बोलता था, अगर वो मुझे मार देगा तो हम सब तुम्हारे गुलाम, और अगर मैंने उसको मार दिया तो इस्राएल हमारा गुलाम हो जाएगा। बाइबल बताती है 40 दिन तक ये करता रहा। लेकिन आपको याद दिलाना चाहता हूं, इस्राएल का सबसे पहला जो राजा था साउल के बारे में यूं लिखा है, इस्राएल में कितने ही लोग थे, सभी से एक गर्दन ऊंचा वो था, सबसे हाइट में सबसे वो था, सबसे हाइटेड व्यक्ति था। और उतना ही नहीं, उसको बारे में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने उसको चुना, उसको इस्राएल का पहला राजा बनाया, लिखा है उसके बारे में आसपास के लोग खौफ में थे, साउल के सामने नहीं जा सकते, साउल के सामने नहीं टिक सकते, क्योंकि ये परमेश्वर का चुना हुआ था। लेकिन बाइबल बताती है इसने खुद अपने पैर काटे। पहला शमूएल 13वें अध्याय में सबसे पहली गलती उसने करी। ये वो जमाना था जब याजक का काम सिर्फ याजक करेगा और राजा का काम राजा को करना है। लिखा है बलिदान तैयार था, लोग इकट्ठा हो गए थे, तो शमूएल अभी तक नहीं आया, तो बाइबल बताती है इसने खुद तलवार उठाकर इसने खुद बलिदान दे दिया। और जब शमूएल वहां पर आया तो शमूएल ने आकर कहा, साउल तूने ये क्यों किया? परमेश्वर तुझसे बहुत नाराज है, ये तुझे नहीं करना चाहिए था। साउल एक बार भी सॉरी नहीं बोलता है, एक बार भी यूं नहीं बोलता है कि मुझसे गलती हो गई। यहां से बात बिगड़ना शुरू हुई। फिर 15वें अध्याय में परमेश्वर ने बोला, शमूएल आकर साउल को बोलता है, अमालेक के ऊपर तू हमला करेगा और छोटा बड़ा कोई भी जानवर को कुछ भी हो, किसी को भी तू जिंदा नहीं रखेगा, कोई भी नहीं। फिर भी बाइबल बताती है साउल गया, उसने अमालेक के ऊपर हमला किया, फिर भी जानवरों को बचा कर लाया। परमेश्वर ने मना किया था, फिर भी वो बातें उसने की। अब शमूएल जब आकर बोलता है कि क्यों ऐसा तूने किया, तो क्या बोलता है पता है? आप घर जाकर पढ़ सकते हैं, पहला शमूएल 15वां अध्याय। वो शमूएल को क्या बोलता है? अरे तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान लाया, अभी तक तो मेरा परमेश्वर था, अभी तेरा परमेश्वर हो गया।
कोई आश्चर्य की बात नहीं। बाइबल हमें यूं कहती है, उसी 15वें अध्याय में जब शमूएल साउल से यूं कहता है कि साउल, परमेश्वर को बलिदान नहीं चाहिए, परमेश्वर को आज्ञा पालन चाहिए, परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो उसकी आज्ञा को माने, तूने क्यों ऐसा किया? वहां से जैसे आगे बढ़ना शुरू किया, लिखा है उसने शमूएल का कपड़ा पकड़ा, कपड़े फट गए। शमूएल ने बोला, आज परमेश्वर ने तेरे राज्य को तेरे पास से फाड़ दिया, ले लिया। अभी भी सॉरी नहीं बोलता है, अभी भी ये नम्र नहीं होता है, अभी भी ये यूं नहीं बोलता है कि हाँ सही बात है शमूएल, मुझसे गलती हो गई। यहाँ तक कि 15वां अध्याय आखिरी कुछ आयत आप पढ़ोगे तो परमेश्वर क्या बोलता है। शमूएल इतना दुखी रहता था, परमेश्वर ने उससे बात कर यूं बोला, शमूएल, साउल के लिए दुखी होना तू बंद कर दे, साउल के लिए दुखी मत होना। यानी ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को के मुताबिक चलता ही नहीं या परमेश्वर को मुका दिखाता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में खेद मत करना लिखा है। क्यों? फिर परमेश्वर 16वें अध्याय में बोलता है, क्योंकि मैंने किसी और को ढूंढ निकाला है, किसी और को चुन लिया है। फिर बाइबल हमको और एक दुख की बात बताती है, आगे आप और पढ़ोगे, लिखा है कि वहां पर दुष्ट आत्माएं साउल पर उतरने लगी, दुष्ट आत्माएं उतरती थी। दाऊद जब वीणा बजाता था तो उतना अभिषेक उसमें होता था कि दुष्ट आत्मा निकल जाती थी, लेकिन वापस दुष्ट आत्मा साउल में आ जाती थी। और इसीलिए आज वो दुष्ट आत्मा से भरा व्यक्ति, जिसके ऊपर से परमेश्वर का हाथ हट गया है, 40 दिन से एक आदमी आकर चिल्ला रहा है कोई तुम में से ऐसा जो मेरे सामने लड़ाई कर सके? लेकिन जीवन में पाप होगा, आप गोलियत का सामना नहीं कर सकते, आप गोलियत के सामने नहीं जा सकते, आपकी पोस्ट, आपकी पोजीशन भी काम नहीं लगेगी। आप जो क्यों ना इजराइल के राजा हो, एक्चुअली उल्टा होना चाहिए। कोई कुछ बोले उसके पहले साउल को कहना चाहिए, अरे मैं हूं ना, परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा। लेकिन ये आदमी तो ठंडा होकर बैठा है, क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर का हाथ जिसमें से हट गया हो, जो खुद पाप में जीता हो, उसके पास कभी भी गोलियत का सामना करने का कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं। आमीन, आमीन। और इसीलिए यहां पर हम देखते हैं, दाऊद इतने जवानी में जब दाऊद आता है, दाऊद आकर अपने भाइयों को खबर अंदर पूछने के लिए आता है, और उसी समय लिखा है गोलियत आया, 40वां दिन था ये, और आकर वापस हरोस की तरह आवाज लगाई, है कोई तुम में से ऐसा व्यक्ति जो मेरे सामने लड़ाई कर सके? भेजो तुम्हारे पास से कोई एक व्यक्ति। उसी वक्त दाऊद क्या बोलता है? दाऊद तुरंत ही वहां पर अपने भाइयों को बोलता है कौन ये खतना रहित, गुजराती में कोई बेसुन्नत परिस्थिति है, कौन ये खतना रहित परिस्थिति जो परमेश्वर के सैन्य को ललकार रहा, मुझे भेजो, मैं जाकर लड़ूंगा। दाऊद कैसे जा सकता है? दाऊद है कौन? दाऊद इसीलिए जा सकता है, दाऊद में इसलिए इतना खुन्नस है क्योंकि इसका रिश्ता परमेश्वर के साथ एकदम साफ है। आमीन, आमीन। ये परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति था, ये परमेश्वर को मान देने वाला व्यक्ति था, ये अपने पिता के भेड़ों को अच्छी तरह से चराता था, बहुत अच्छी तरह से काम करता था, लेकिन इसके बीच में परमेश्वर के साथ भी इसका रिश्ता इसने बहुत अच्छा बना के रखा था। इसीलिए बाइबल कहती है दाऊद गया और दाऊद ने गोलियत को मार दिया। यहां तक कि औरतें घर के बाहर निकल आई, और औरतें बाहर निकल कर आकर गीत गाने लगी और यूं कहने लगी, साउल ने 1000 मारे लेकिन दाऊद ने तो 10,000 मारे। दाऊद ने 10,000 नहीं मारे थे, एक ही मारा था। लेकिन आप गीत देखो, गीत के द्वारा पता चल रहा था जिस आदमी का सामना कोई नहीं करने पाया, वो दाऊद ने करके दिखाया। आज भी हकीकत ऐसी है, आज भी जो विश्वासी व्यक्ति अगर पाप में जिएगा, गोलियत का सामना नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर को अगर ऐसे विश्वासी मिल जाए जो पहले मंदिर को साफ करना चाहते हैं, जो इस बात को समझते हैं पहले मंदिर शुद्ध होना चाहिए, और मंदिर शुद्ध होगा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, गवाहियां पर गवाहियां होगी, क्योंकि ऐसे विश्वासी गोलियत को ढा देंगे, ऐसे विश्वासी मारेंगे, ऐसे विश्वासों के द्वारा चंगाइयां होंगी, ऐसे विश्वासों के द्वारा बड़े काम होंगे, और लोगों को पता चलेगा इनका परमेश्वर सही में जिंदा परमेश्वर है। आमीन, आमीन। पहले चंगाई नहीं आती है, पहले गुनाहों की माफी आती है, पहले सुधार आता है, पहले मंदिर को साफ करना है, पहले मंदिर को शुद्ध करना है। आमीन, आमीन। हमारा परमेश्वर पारदर्शक है, पहले वो चाहता है विश्वासियों की पारदर्शक। अगर आप किसी को कहते हैं मैं तुम्हें प्यार करता हूं तो करता हूं, ऐसा नहीं कि अभी मुंह पे प्यार करता हूं, पीठ के पीछे तो इतना खोदता हूं कि तुम खुद 6 फुट से भी ज्यादा खोदता हूं, ऐसा नहीं।
यीशु मसीह को सबसे पहले मंदिर साफ करने में इंटरेस्ट है। आमीन। क्योंकि वो चाहते हैं कि हम न खो जाए। चंगाई तो आज है, कल फिर भी लाजरस को मुर्दों में से जिंदा किया, फिर भी वो आज नहीं है। आमीन। यीशु मसीह ने कितने अंधों को देखता किया, उसमें से एक भी आज जिंदा नहीं है। कितने लूले लंगड़ों को चलता किया, उसमें सुसमाचार में हम पढ़ते, फिर भी उसमें से आज एक भी नहीं है। क्योंकि मौत एक दिन आने वाली है। तब कोई पाप हमारे जीवन में न हो, तब कोई ऐसे दाग, ऐसे जुर्रियां ना हो। क्योंकि बाइबल बताती है पाप की कमाई मृत्यु है। ये पाप नहीं छोड़ता, किसी को भी नहीं छोड़ता। यही पाप था सुलेमान राजा जिसने यहोवा का मंदिर बनाया, वही सुलेमान राजा ने दूसरे मंदिर बनाए और बाइबल बताती वो गिरा। राजा ही क्यों ना था, दुनिया का सबसे बुद्धिशाली व्यक्ति क्यों ना था, लेकिन वो गिरा। उसका हृदय, लिखा है, उसकी औरतों ने यहोवा परमेश्वर से दूर कर दिया। पाप ये विश्वास को खा जाएगा, पाप इसको गुलाम बना देगा, पाप विश्वासी को खत्म कर देगा। इसीलिए प्रभु यीशु चाहते हैं, पाम संडे का संदेश ये है, आपको ऐसा हो कि यीशु मसीह ऐसा करे वैसा करे। अरे मैंने तो क्या सोचा था, क्या हो गया, मैंने तो ये सोचकर बुलाया था कि सिगरेट भी मैं पीता रहूँगा, दारू भी पीता रहूँगा और बात आगे बढ़ती रहेगी। अरे ये तो मुझे सिगरेट ही नहीं पीने देना, ये तो दारू छोड़ने को बोल रहा। लेकिन वो जानता है कि पाप आपको खत्म कर देगा। आमीन। पाप हर आशीषों को रोक के रख देगा। इसीलिए वो चाहते हैं पहले मंदिर साफ हो। ये मंदिर जो, ये शरीर जो उसका मंदिर है, ये पहले साफ हो। आमीन। आमीन। यहोशुआ झुककर विचार कर रहा, क्यों मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा, क्यों हम आई को नहीं हराने पाए। परमेश्वर बोलता है, खड़ा हो जा, पहले तुम्हारे बीच में पाप है, उसको समाधान करो, पहले उसको निकालो। आमीन। और उसको निकालोगे तो तुमको कनान तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। आइए अपनी जगह खड़े हो जाए। ऐसी कोई आशीष नहीं जो प्रभु यीशु हमें देना नहीं चाहते। ऐसा कोई अवरोध है ही नहीं जिसको उखाड़ कर प्रभु यीशु नहीं फेंक सके। लेकिन वो चाहते हैं सबसे पहले हम अपने जीवनों को जांचें। क्या हमने यीशु मसीह को बाहर तो निकाल कर नहीं फेंक दिया कि प्रभु नहीं, मेरा स्वभाव तो ऐसा ही अच्छा है, मुझे तो नहीं बदलना है। नहीं प्रभु, मैं तो किसी को माफ नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर सकती। लेकिन पाम संडे हमको याद दिलाता है, इसकी वजह से हमारी चंगाइयां रुकी पड़ी हैं, इसकी वजह से हमारे प्रार्थना के जवाब रुके पड़े हैं, इसकी वजह से कितनी सारी आशीषें रुकी पड़ी। क्योंकि प्रभु यीशु को पहले मंदिर साफ करना है। उसको फर्क नहीं पड़ता कितना मान दो, कितना सम्मान दो, होसाना होसाना करो, उसके लिए डालियां तोड़ के लाओ, अरे कपड़े भी उतार के रख दो कि प्रभु तू उसके ऊपर चल, फिर भी उसको उस प्रशंसा से कोई लेना देना नहीं। उसको सबसे पहले लेना देना, मंदिर को पहले साफ करो। मंदिर में सब उल्टा सीधा चल रहा है, मंदिर को पहले साफ करो। मेरा पिता का मंदिर प्रार्थना का घर कहलाया जाना चाहिए। और मंदिर को साफ किया तो चंगाइयां आई, ऐसी चंगाइयां आई, ऐसे काम प्रभु यीशु ने किए कि छोटे बच्चे भी चुप नहीं रहने पाए। ऐसा काम आज भी परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है, लेकिन पहले वो मंदिर को साफ करना चाहता है। आइए हम अपने जीवनों के बारे में सोचें। कितनी प्रार्थना हमारी भी अधूरी, कितने अवरोध हमारे जीवन में आज भी खड़े हैं। और गोलियात जैसे लोग ऐसी समस्याएं चिल्ला चिल्ला कर हमको कई बार डरा के चली जाती हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता ठीक है। उसने काइन को नकार ही दिया तो उसके अर्पण को भी नकार दिया, लेकिन हाबिल का स्वीकार किया तो उसके अर्पण का भी स्वीकार किया। परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मेरा हाथ छोटा नहीं कि मैं तुझे आज भी बचा ना सकूं। तेरी समस्या मेरे लिए कुछ भी नहीं, मैं तुझे यूं ही बचा सकता हूं, क्योंकि
मैं आज भी सर्वशक्तिमान हूं। मेरे कान आज भी बहरे नहीं हो गए कि मैं तुम्हारे दुआओं को सुन न सकूं, लेकिन तुम्हारे पाप ने मेरे और तुम्हारे बीच में ऐसी दीवार खड़ी की है कि मैं तुम्हारा सुनूं ही नहीं। प्रभु यीशु मसीहा, ये बात सच है कि हम पहले चंगाई के बारे में सोचते हैं, हम पहले आशीषों के बारे में सोचते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं करना चाहते, आप तो ऐसा काम करना चाहते हैं कि छोटे बच्चे भी गवाहियां देना शुरू कर दें, प्रशंसा करना शुरू कर दें, दूसरों को बताना शुरू कर दें, देखो हमारे चर्च में, देखो हमारे परिवारों में कैसे काम हो रहे हैं। लेकिन उसके पहले आप चाहते हैं ये हो, और ये तभी हो सकता है जब पहले मंदिर साफ हो। हम कबूल करते हैं प्रभु यीशु मसीहा कि हमने कितनी बार हमें अच्छा नहीं लगा तो हमने आपको बाहर निकाल दिया, इसीलिए चाहिए ऐसा हमारा स्वभाव नहीं बदला, चाहिए इतनी शुद्धता हमें नहीं आई, और इसीलिए हमारी कितनी सारी प्रार्थनाएं रुकी पड़ी। कितनी बार गोलियात हमको डरा जाते हैं, कितनी बार आई जैसे परिस्थिति हमको हरा जाती है, और सारी समस्याओं का हल एक ही है कि पहले हम शुद्ध हो जाएं, हम पवित्र हो जाएं प्रभु यीशु मसीहा। इसलिए एक बार फिर से हम आपका लहू हम अपने आप पर लेते हैं और आपसे विनती करते हैं, इसी लहू में हमें फिर से एक बार धो दीजिए, साफ कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए, और फिर से एक बार हमने अपने जीवनों को आपके हाथों में दे देते हैं, ये विनती करते हुए कि आप इस तरह से आए इस बार प्रभु यीशु कि आपको जो ठीक नहीं लगता उसको आप बदल दें, आपको ठीक नहीं लगता, आपको जो ठीक लगता उस तरह से आप करें प्रभु यीशु। दाऊद ने भी जैसे कहा भजन संहिता 139 सबसे आखिरी आयत में, मेरे अंदर आ और मुझे जांच और देख, जो बातें मुझे अनंत काल से दूर रखती हैं उसको निकाल दे, और वही बातें मेरे में रहें, मुझ में बनी रहें, जो मुझे अनंत कालिक जीवन के और करीब ले जाए। हमें जो छोड़ना है हम छोड़ ही दें, जो पकड़ना है उसको और कस के पकड़ लें। ये मंदिर शुद्ध हो, साफ हो, और जब ऐसा होगा तो प्रभु यीशु पाम संडे हमको याद दिलाता है, चंगाई आएगी, दुआओं के जवाब आएंगे, बड़े बड़े चिन्ह होंगे, बड़े बड़े चमत्कार होंगे, बड़े काम होंगे, बड़ा विजय आएगा, बड़ी गवाही खड़ी होगी और महिमा आपकी होगी। ऐसा ही हो, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमीन।